Hello students, I hope you all are well and doing great in your academics. So I am here with second part video for a very emotional and heart touching poem, Father to Son. I know that you all are waiting for it for a quite long time and finally it outed. So learners, in this part we are gonna cover all the stanzas of this poem, and in previous part we covered, I told you the introduction and summary of this amazing outstanding poem. So if you are not familiar with the introduction and summary, so there is link given in the description box for the part 1's video. Okay, so you just don't worry, go over there and you will be finding the part first video. Okay students, so just pay attention what I am going to tell you. So now begin with the first stanza of this poem. I do not understand this child, though we have lived together now in the same house for years. I know nothing of him, so try to build up a relationship from how he was when small, yet have I killed. Now just have a look at the explanation. Students, you can write these explanation which I have written for you to explain, because it will make you easy at the exam times when you have to revise it very quickly. Okay students, so I request you, please take out your pen or paper and write these all things or any kind of important points which you want to be remembered. So the explanation for first stanza is, in the above stanza the poet shares his feelings about his relationship with his son. He says that although they have lived together in the same house for many years, but yet then also he doesn't understand him. हिम कौन है यहाँ पे? चाइल्ड है, मतलब उसका जो बेटा है, सन है. ही डजेंट नो एनी थिंग अबाउट हिज सन, मतलब किस तरीके की रिलेशनशिप उनकी हो गई है, बिल्कुल सेपरेशन होने वाली जो रिलेशनशिप हो गई है उनकी, उसमें इतनी ज़्यादा उनकी रिलेशनशिप में तकरार आ गई है कि पोएट ये तक बोलने के लिए तैयार हैं कि क्या मैं अपने बेटे के बारे में कुछ भी नहीं जानता. ऑल्दो हम एक ही घर में रहते हैं, बट फिर भी मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता, उसके लाइक्स के बारे में, उसको क्या चीज़ नहीं पसंद है उस चीज़ के बारे में. ही ट्राइड टू बिल्ड अप रिलेशनशिप विद हिम फ्रॉम द टाइम ही वॉज रियन एंड स्मॉल. ओके, जब से उनकी रिलेशनशिप ख़राब हुई है, मतलब जब जो सन थे वो छोटे थे तब उनकी रिलेशनशिप अच्छी थी, मतलब ऐसा नहीं था कि वो शुरुआत से ही ख़राब थी, नहीं. जब जो पोएट के जो बेटे थे वो छोटे थे तब उनकी रिलेशनशिप, उन दोनों की जो फादर और सन की जो एक नेचुरल रिलेशनशिप होती है, नेचुरल बॉन्डिंग होती है, बिल्कुल वैसे ही थी. लेकिन जब जैसे जैसे जो उनके बेटे हैं, सन हैं, वो ग्रोन अप होना शुरू हो गए तो उनकी जो रिलेशनशिप है उनमें सेपरेशन की फीलिंग्स आने लगी. और इसका यहाँ पे मेन रीज़न देखा जाता है जनरेशन गैप. ओके स्टूडेंट्स, तो आजकल के बच्चे भी कई बार सोचते हैं कि हम तो बड़े हो गए हैं, हम क्या अपने पेरेंट्स से बातें शेयर करेंगे, वो कहाँ समझेंगे हमें. सो आई एम गोना टेल यू दैट वो समझेंगे, क्योंकि जिस फेज़ में तुम हो उस फेज़ में वो होके चले गए. ओके, तो उनसे बातें शेयर किया करो, उन्हें कभी भी ये फीलिंग मत आने दिया करो कि ये जो सेपरेशन वाली, दरार वाली फीलिंग है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक जनरेशन गैप की वजह से कभी आए आप लोगों में, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए. सो आई होप आपको फर्स्ट स्टेंजा क्लियर हो गया होगा. सो नाउ मूव टू द सेकेंड स्टेंजा. द सीड आई स्पेंट और सोन इट वेयर द लैंड इज़ हिज एंड नन ऑफ माइन. We speak like strangers, there is no sign of understanding in the air. This child is built to my design, yet what he loves I cannot share. So now have a look at the explanation. The father uses I in the first line.
आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, यहाँ पे आई यूज़ किया गया है फर्स्ट लाइन में, द सीड आई। ओके, आई यहाँ पे कौन है, फिर यहाँ पे फादर बोला गया है आई को, मतलब जो पोएट हैं वो। द फादर यूजेस आई इन द फर्स्ट लाइन टू एक्नॉलेज हिज रोल इन द communication gap between them. He says that despite all efforts, his son was in another place that the father cannot access to. They used to talk to each other like strangers, and there was no sign of understanding between them. His child used to look like him, and yet he did not know what his सन लव्ड। तो यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे जो पोएट हैं उन्होंने अपनी ही फीलिंग्स बताई हैं कि कैसे हमारे मतलब जो पोएट है और उनके सन हैं उनके बीच में कैसे जो कम्युनिकेशन गैप है वो बढ़ता जा रहा है, उसका क्या कितना बड़ा यहाँ पे रोल बन चुका है कि मतलब जो सन है वो एक ऐसी प्लेस में चले गए हैं जहाँ पे जो पोएट हैं वो एसेस भी नहीं कर पा रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, और वो एक दूसरे से बात करते हैं तो भी एक स्ट्रेंजर्स की तरह, वो ऐसे बात करते हैं जैसे वो एक दूसरे को जानते ही ना हो। वहाँ पे कोई भी किसी भी तरह का साइन नहीं होता अंडरस्टैंडिंग का, जो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है एक फादर और एक सन के बीच में, जो नेचुरल जो बॉन्डिंग होती है उसमें जो एक नेचुरल अंडरस्टैंडिंग होती है वो अंडरस्टैंडिंग वहाँ पे नहीं थी। वो एकदम एक दूसरे से ऐसे बात कर रहे थे जैसे वो कभी एक दूसरे को जानते ही नहीं, वो अजनबी हैं एक दूसरे के लिए। हिज सन यूज़ टू लुक लाइक हिम, जो सन है हिज चाइल्ड, उसका जो बेटा है वो उन्हीं की तरह दिख रहा है, मतलब दिखने वाला है, लेकिन येट ही डिडंट नो व्हाट हिज सन लव्ड, लेकिन उन्हें अब तक ये नहीं पता, फादर को अब तक ये नहीं पता कि क्या उनका बेटा क्या पसंद करता है, क्या चीज़ चाहता है उनसे। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप आपको सेकेंड स्टेंजा भी क्लियर हो गया होगा। इसमें बस जस्ट कुछ नहीं बताया गया, इसमें जस्ट ये बताया गया कि कैसे जो पोएट है और उनके बेटे हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन का गैप आ जाता है, वो एक दूसरे से बातें कुछ इस तरीके से करते हैं जैसे वो कभी एक दूसरे को जानते ही नहीं थे। जो चाइल्ड है वो सन की जो चाइल्ड है उनका जो बेटा है सन है वो अपने फादर की तरह बड़ा होता जा रहा है, लेकिन अब तक उनके फादर को ये नहीं पता कि मेरे बेटे को पसंद क्या है, मेरा बेटा मुझसे चाहता क्या है। ओके, और वहाँ पे किसी भी उनकी जो कम्युनिकेशन है वहाँ पे किसी भी तरह की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो एक फ़ादर और एक सन के बीच में होती है नेचुरली, वो वहाँ पे है ही नहीं। और जो सन है वो ऐसी प्लेस में जा चुके हैं जहाँ पे फादर एसेस भी नहीं कर पाएंगे, मतलब जा तक नहीं पाएंगे। सो नाउ मूव टू द थर्ड स्टेंजा। साइलेंस सराउंडेड अस, आई वुड हैव हिम prodigal returning to his father's house, the home he knew, rather than see him make and move his world. I would forgive him too, shaping from sorrow a new love. Now have a look at the explanation. There is silence between them. जैसा कि आप पिछले जो स्टेंजा में बताया गया था कि वो कैसे बात करते हैं एक दूसरे से, जैसे वो एक स्ट्रेंजर हों, वो एक दूसरे से परिचित ना हो, एक दूसरे को कभी पहले जानते ही ना हो। ओके, एज अ चाइल्ड ही वॉज अ prodigal son, and now his father wanted him to return to his house, the one he knew. He did not want his son to move around and make his own world. He was ready to forgive him and let go of the sorrows he had inside because of him. Because of the distance between them, he wanted to love him again. तो यहाँ पे एक फादर की फीलिंग्स बताई गई हैं। क्या फीलिंग्स बताई गई हैं? वो बोल रहे हैं कि हम बैठे हैं साथ में, लेकिन हमें जो साइलेंस ने घेर रखा है वो हम दोनों को अंदर से घिचोड़ रहा है। ठीक है, घिचोड़ रहा है इन द सेंस कि
हम दोनों को अंदर से खाया जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे बेसिकली एक फादर की फीलिंग बताई गई है कि कैसे वो अपने सन को माफ़ तक करने के लिए तैयार हैं, वो सारे जो सन के जो दुख हैं उन्हें सुनने के लिए तैयार हैं ताकि वो शेड ऑफ हो जाएं। ओके, वो नहीं चाहते कि वो जो सन है उनका वो अपनी ही अलग दुनिया बनाए। वो चाहते हैं कि वो घर पे आ जाए, मतलब हाउस पे तो वो है ही, लेकिन वो अच्छे से घर पे आ जाए, वो उस तरीके से घर पे आ जाए, वो सन बन के घर पे आ जाए जिस सन को वो पहले कभी जानते थे बचपन में। ओके, और ये सब कुछ हुआ क्यों? ये सब कुछ सिर्फ इसलिए हुआ कि वहाँ पे डिस्टेंस आ गया है दोनों के बीच में। किस तरीके का? जनरेशन डिस्टेंस, जनरेशन गैप बोलते हैं जिसे। और जो फादर है वो अब भी जो सन है, उनके जो बेटे हैं, उन्हें माफ़ करने के लिए तैयार है, उन्हें एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। उन्हें क्यों? क्योंकि वो उन्हें लव करना चाहते हैं, उनके साथ वो फीलिंग्स दोबारा जीना चाहते हैं, वो जो कभी मर सी गई हैं, जो कभी बचपन में उन दोनों के बीच में थी। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ आई होप आपको वो स्टेंजा क्लियर हो गया होगा। नाउ मूव टू फोर्थ स्टेंजा। फादर एंड सन, we both must live on the same globe and the same land. He speaks, I cannot understand myself why anger grows from grief. We each put out an empty hand, longing for something to forgive. So now have a look at the explanation. The son speaks for the first time and explains what he feels. He also feels sad about the distance between them. He shares that he is at a point where he doesn't understand himself only. Okay, his anger arises out of his sadness. It is quite clear that on both sides, like the same frustration about the gap in their relationship, they both want to forgive each other and yet they cannot find a solution to the problem. Both of them put out an empty hand for the other to seek, always in vain. तो स्टूडेंट्स, बच्चा लोग, यहाँ पे ये बताया गया है कि कैसे जो एक सन है वो फील करता है। ओके, अब यहाँ पे पहले हमने फादर की फीलिंग्स पढ़ी कि क्या क्या फादर फील करता है। फादर चाहता है कि उसका बच्चा उसके पास दोबारा आ जाए और उस वे में आए जिसको वो कभी जानते थे, ठीक है। तो क्या सन को भी अच्छा लग रहा है? नहीं, सन को भी अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों अच्छा नहीं लग रहा है? क्योंकि जब वो एक सन भी चाहता है कि मुझे भी कहीं से प्यार मिले, मुझे भी वो आशीर्वाद मिले, मुझे भी वो बॉन्डिंग मिले जो हर एक सन को अपने फादर से मिलती है। वो जो सन है उसने पहली बार अपने दुख को, अपनी फीलिंग्स को बयां किया कि वो बोलते हैं कि मैं खुद नहीं जानता कि ये जनरेशन गैप की वजह से मैं भी सैड फील कर रहा हूँ, लेकिन मैं खुद नहीं जानता, मैं जानता कि मैं कौन सी स्टेज में आ गया हूँ कि मुझे खुद को ही नहीं समझ में आ रहा मैं क्या हूँ, ठीक है। मतलब वो अपनी ही फीलिंग्स नहीं समझ पा रहा है तो वो दूसरे को क्या बताएगा, वो अपने फादर को क्या बताएगा? कुछ नहीं बता सकता वो, ठीक है। और साथ ही में क्या है, वो भी सैड है, वो भी अंदर से घिचुड़ रहा है, बेचैन है, ठीक है। किसको लेके? जो जनरेशन गैप की वजह से डिस्टेंस उन दोनों के बीच में आ गया है, फादर और सन के बीच में। जो सन है वो भी परेशान है, फादर ही नहीं है, सन भी है। जो सन का एंगर है वो कैसे जो अराइज हो जाता है, उसकी सैडनेस को ओवरकम कर लेता है उसका गुस्सा, ठीक है। वो चीज़ भी उसे नहीं समझ में आ रही है। और ये दोनों की तरफ से क्वाइट एकदम क्लियर था कि जो फ्रस्ट्रेशन है वो दोनों की तरफ से है उस जनरेशन गैप को लेके। उनकी जो डिस्टेंस आ गई है रिलेशनशिप में उसकी वजह से, ओके, वो जो डिस्टेंस आई है उसके लिए उन दोनों के मन में फ्रस्ट्रेशन है, दोनों ही अंदर से घुचड़ रहे हैं, दोनों ही एक दूसरे की तरफ हाथ बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। एक एम्प्टी हैंड दोनों ने एक दूसरे की तरफ बढ़ाया है लेकिन किसी ने उसे पकड़ा नहीं है, नहीं फादर ने, नहीं सन ने।
ठीक है, क्यों? क्योंकि उनको अब तक इस प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं मिला है। ओके, और जब उनको इस प्रॉब्लम का सल्यूशन मिल जाएगा तो वो एक दूसरे का हाथ बिना आगे करे ही गले लग जाएंगे। ओके, तो वो बोल रहे हैं सन की दोनों ही अंदर से हम घिचुड़ रहे हैं, मैं भी अंदर से सैड हूँ और जो पोएट है वो भी अंदर से सैड है। दोनों ही एक दूसरे की तरफ एम्प्टी हैंड बढ़ा रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन कोई भी ना तो फादर और ना ही सन उसको पकड़ रहा है और सब कुछ बेकार हो जा रहा है, वेन हो जा रहा है, उनकी रिलेशनशिप फिर से ठीक नहीं हो पा रही है। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप you understand the fourth stanza, or I should say last stanza of this poem. So if my videos are helping you, then please share it, because many of the students also want it. Okay, and if you like my video, then like it. If you don't like it, then you are free to tap on that dislike button. Yeah, don't forget to comment if you want more and more videos on the topic in which you are most confusing in. Okay, so because I want to let it to know that on which topics you are most confusing. Okay, which topics are making you frustrated. Okay, because I think that I can understand you, I can make them understand you in a more better way. So, and don't forget to comment like how my video was, because it really encourages me. I know some people regularly comments me and I know them who they are. Thank you, my dearest ones who are commenting me on each and every videos, and your motivation in the form of comments is really motivating me. Okay, so thank you so much, and if you want more and more notification and videos of mine, then please subscribe to my channel. Thank you and have a nice day. And students, please ये जनरेशन गैप मत आने देना बच्चा लोग, प्लीज़, क्योंकि ये जनरेशन गैप कहीं ना कहीं आगे जाके आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर देगा. Okay students, thank you and have a nice day. Thanks for watching my video.